Hello children. Now after having the small vacation, first and foremost what I need to send you is the paper. As I had told you, it is of lesson number 1 BA, right? So this paper you need to copy down first, and then you need to take not more than an hour to write down this paper. So please copy this paper properly. You must have prepared, I'm sure, and write it down for your practice, and it is also for self assessment, right? Okay, now I was thinking that I would start the lesson of economics, but as per the timetable we need to start with the second lesson of BA, because in the timetable we have to start with BA again, Organization of Commerce again. So before we start with the lesson, let us try to share whatever experiences we had during the lockdown up till now. I'm sure you must be having a lot of stories too, right? So this is the lockdown number 4, and some partial chut chat, some partially we'll be allowed to move around, partially the things will reopen, but not schools, right? So it's going to require more time, and it's going to be a long time before the schools can start. Okay, I will tell you one kind of a joke or kind of a real experience, because as you know, Modi ji has told all of us to become how? Self-sufficient. The whole country needs to be self-sufficient. He has sanctioned a budget of some 20 lakh crores, right? So one such boy who was at home during lockdown was having his breakfast of bread and butter, and he also decided कि he needs to be Atmanirbhar, self-sufficient. So his mother was busy working in the kitchen, and he was sitting at the table and eating his bread butter. But then he thought कि he wanted to make it more tasty, wanted to make it tastier, so he himself got up. आत्मनिर्भर बनना था ना, तो he himself got up and went to the fridge, and he took out the green chutney. He wanted to add some spice to his bread and butter, and then he applied and he started eating, and he thought, oh, these days the coriander is not so proper, the chutney is not tasting as usual, and he somehow ate it. And then his mother came and he asked, "Beta, did you see the bowl of mehendi that I had put in the fridge?" Okay, so that is what he had eaten. So now let us move ahead to the lesson. Which lesson? Lesson number 2, Principles of Management, right? Let us try to understand what these principles of management are, how they evolved, and so on. Okay. So here, Principles of Management, Chapter 2. Give me a moment, because of the fan, the pages keep on flying. Here. So we have got this Principles of Management. Let us look at the introduction part. So, since ancient time, history of management concept is ancient. It is there since ancient time. चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड तुम लोगों को पता है, तो since the time of Chandragupta Maurya's time, it is used in the policy of war and administration. चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा माना जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो उसने बहुत ही एम्पायर बड़ा किया था, अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान से लेके पूरा एक अपना उड़ीसा उसके हाथ में नहीं आया, वो बाद में अशोका के हाथ में आया। तो
इवन अपना क्या बोला जाता है टिल महाराष्ट्र कोंकण, तो अफ़गानिस्तान से लेके महाराष्ट्र कोंकण पूरा आसाम ये बाजू तक उसने अपना बड़ा बहुत इसका साम्राज्य था। बट इट वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ वॉर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसकी जो स्ट्रैटेजीज थी, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। लाइक वंस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ चाणक्य, राइट? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन था? चाणक्य था, या कौटिल्य भी उसको कहा जाता है। नाउ कौटिल्य या जो चाणक्य जो था ना, वो दिखने में अच्छा नहीं था, उसको बहुत सारे मार्क्स थे चेहरे पे। और एक धनानंद जो था, नंद डायनेस्टी का, उसने उसका क्या किया? इंसल्ट किया उसके अपीयरेंस को देखते हुए। तो देन ही डिसाइडेड कि ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय नंद डायनेस्टी। अभी एक बार क्या हुआ, पहले चंद्रगुप्त मौर्य का कैसे बर्थ हुआ वो देखते हैं। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य कैसे साथ में आए ये हमको देखना है, तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर पॉलिसी ऑफ वॉर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, वो क्या थे कि उनके जो फादर थे, ही वॉज द आर्मी का चीफ, और एक बैटल में वो मारे गए। बैटल में मारे जाने के बाद उसकी मदर वो जगह छोड़ के भाग गई, और फिर उसने चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म दिया। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो उसको संभाल नहीं पाई, और उसको छोड़ के उसका त्याग किया उसने, और वो चली गई वहाँ से। तो दोज वर द बैटल सर्कमस्टांसेस। तो उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य को पालने वाला एक शेफर्ड था, तो शेफर्ड ने बाद में उसको एक हंटर को बेच दिया। ऐसे कर करके उसका जो चाइल्डहुड था वो ऐसे सामान्य था, ऑर्डिनरी। देन बट उसको अंदर से ही वॉज वेरी वेरी क्लेवर, हु चंद्रगुप्त मौर्य। और उसमें लीडरशिप बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बीए है तो लीडरशिप का तो हमको देखना है ना कि लीडरशिप कैसे आती है। तो लीडरशिप उसके अंदर बहुत थी। तो ही वॉज प्लेइंग मॉक कोर्ट, कैसे राजा का कोर्ट होता है ना, वैसे कैसे कोई कोई बच्चियाँ होती है तो वो कभी कभी ब्यूटी पार्लर का खेल खेलते हैं, कोई कोई छोटे बच्चे होते हैं वो टीचर बन के स्कूल का खेल खेलते हैं। वैसे वो एक राजा के कोर्ट का वो खेल खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल, यंग। एट दैट टाइम चाणक्य वाज पासिंग फ्रॉम देयर एंड ही हर्ड द कोर्ट के प्रोसीडिंग्स। रियल कोर्ट नहीं था ना, ये खेलने वाला कोर्ट था। But he understood the intelligence of Chandragupta Maurya, and then he took Chandragupta Maurya to तक्षशिला, और वहाँ पे उसने उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसने उसको सिखाया, बिकॉज चाणक्य वॉज वेरी क्लेवर। तो तक्षशिला में वो लेके गया, उसको सब कुछ उसने सिखाया, और उसको यूज़ किया चंद्रगुप्त मौर्य को नंदा डायनेस्टी को ख़त्म करने में। ठीक है, तो इस तरीके से हमको देखा जाता है कि ये जो उन्होंने चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो भी पॉलिसी ऑफ वॉर किए थे, तो जब नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने का था तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी के सेंटर को अटैक कर दिया, मगध को, और वो ही लॉस द बैटल। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ही वॉज इन हाइडिंग व्हेन ही लॉस द बैटल, एंड देन ही वेंट टू अ hut, and inside the hut a mother was scolding her child because the child was eating some type of cake, maybe बोल सकते हैं rice cake or something. तो he had put his finger in the middle in the hot cake and he had burnt his finger, and the mother was scolding कि साइड से खाना चाहिए, समझ में नहीं आता। तो ये एक लेसन ले लिया, लेसन कहीं से भी मिल सकते हैं, तो ये लेसन ले लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसको समझ में आया कि उसने बड़ी गलती कर दी कि उसने सेंटर को मगध को अटैक किया। और उसने फिर डिसाइड किया स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी? जिसको कि हम ये स्ट्रैटेजी बोलो, प्रिंसिपल्स बोलो, ये एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं। तो ये जो रूल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये ऐसे ही एक्सपीरियंस से डेवलप होता है। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक रूल मिल गया कि हमेशा पेरीफरी से अटैक करो, और ऐसे करके उसने बाद में नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया। और जो धनानंद था जिसने इंसल्ट किया था किसका? चाणक्य क्या, उसको भी उसने मार दिया। कोई कोई बोलते कि उसको छोड़ दिया, उसको चले जाने को बोला।
तो वो जो भी हो, लेकिन उसने नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कमिंग बैक टू दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हाउ दे इवॉल्व, ये समझने के लिए आई टोल्ड यू दिस स्टोरी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये थे। अभी दूसरा जो हम बोलेंगे कि कैसे पीरियडिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व, दे हैव कम, न्यू प्रिंसिपल्स हैव कम, तो बोलेंगे कि इवॉल्व। तो न्यू स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग शिवाजीज टाइम अगर देखेंगे, शिवाजी के टाइम की स्ट्रैटेजी पता है तुम लोगों को? व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी ऑफ शिवाजी के पास? देखो, मुग़ल के पास बहुत बड़ी सेना थी और शिवाजी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी, फिर भी बहुत बार उसने उनको हराया है। मुग़ल्स को कैसे हराया है? उसको मराठी में बोला जाता था गनिमी कावा, मतलब छुपे तरीके से उसने उन लोगों को मुग़ल्स को हराया। बड़ी सेना भी होती थी तो भी शिवाजी का एक एक सैनिक बराबर 1000 ऐसे था। तो वो क्या करते थे, कभी वो गुलेल होती है ना, उसमें पत्थर से वो मारा कर देते थे, या कभी गरम गरम तेल वो इनके ऊपर डाल देते थे अपने किलों पर से। ऐसे बहुत सारे उनकी छुपी स्ट्रैटेजीज होती थी और वो करके, या वो कभी कभी 3-4 बाजू से ऐसे दिखाई देते थे। वही सपोज़ कि 500 की सेना है तो भी 3-4 बाजू से वो एक बार रात में यहाँ से वहाँ से दिखाई देंगे तो मुग़ल्स को लगेगा कि बहुत बड़ी सेना है। ऐसे उनके बहुत सारे छुपे दाव होते थे और इस तरीके से दे यूज़ टू डिफीट द मुग़ल्स। तो उनका मेनली था छुपा तरीका, तो गनिमी कावा। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड द वो जो पीरियड था, अकॉर्डिंग टू दैट, तो वो जो रिक्वायरमेंट होगी कि क्या ऑब्जेक्टिव है, अकॉर्डिंग दिस टू दैट द प्रिंसिपल्स हैव पीरियडिकली इवॉल्व, दे हैव चेंज। ठीक है। तो मैनेजमेंट गुरुज, बाद में अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मैनेजमेंट गुरुज हैव चेंज दिस प्रिंसिपल्स ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस पर से उन्होंने नए नए प्रिंसिपल को इवॉल्व किया। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ये प्योर साइंस नहीं है, बिकॉज दिस प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, चेंजेबल। रिजिड नहीं है, चेंजेबल है। रिजिड कौन होता है? जो बदलते नहीं हैं उसको बोलते हैं रिजिड, और जो बदलते हैं उनको क्या बोला जाता है? फ्लेक्सिबल। तो अभी मीनिंग देखेंगे कि व्हाट आर दिस प्रिंसिपल्स एक्चुअली। इन अ वे दे आर रूल्स सेट इन रिलेशन टू ह्यूमन बिहेवियर। किस तरह का ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, उसके लिए जो रूल्स सेट किए हैं। तो रूल्स किस लिए सेट किए हैं? फॉर इंक्रीजिंग कोऑपरेशन फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। सो दे आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दे आर व्हाट एक्चुअली द एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस। पूरा एक निचोड़, हमारा जो एक्सपीरियंस था हमारे एक्सपर्ट्स का, उसका एक निचोड़ उन्होंने लिख के दे दिया। उसको बोला जाता है एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। वो है तुम्हारे प्रिंसिपल्स। अभी कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इट इज़ सीन कि न्यू प्रिंसिपल्स इवॉल्व विथ चेंजिंग टाइम। जैसे हमने मौर्य डायनेस्टी की, शिवाजी की बात की, मैनेजमेंट गुरुज की बात की, तो ये नए नए प्रिंसिपल्स आते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी भी आती है ना। तो जैसे हम देखेंगे कि कैसे नए प्रिंसिपल, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना कंट्री का भी है उसमें कैसे आए हैं, कि क्या हुआ है, कंप्यूटराइजेशन हो गया अभी बैंक्स का, अभी आधार एज ए आइडेंटिटी ऑफ सिटीज़न आ गया। तो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको दूर करने के लिए नए नए रूल्स लाए जाते हैं। दोज आर लाइक द प्रिंसिपल्स फॉर बेटर मैनेजमेंट। ये किस चीज़ के लिए किया जाता है? फॉर बेटर मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का मेन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। बेटर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये किया जाता है। नाउ वी हैव रिसेंटली फिनिश दिस लेसन, जिसमें कि हमने 3 लेवल्स ऑफ देखे हुए हैं मैनेजमेंट। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की फिर से बात करें, जिसका कि बहुत बड़ा एम्पायर था, फिर भी उसके पास भी लेवल तो 3 ही थे, और उसके 3 लेवल में मेनली आता था उसका जो मेन लेवल है उसको बोला जाता था द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से उसके 3 थे? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आता था उसका प्रोविंशियल। जैसे हमारा भी होता है ना, एक सेंट्रल, फिर स्टेट, और फिर आता था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारा भी आज चलता है। तो हम भी पुराने जो भी हमारे एक्सपीरियंस पर से ही हम बनाते हैं, तो ये प्रिंसिपल भी एक्सपीरियंस पर से ही बनते हैं। सो दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। ये कैसे होते हैं? रिजिड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं। बट दे आर लाइक द गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग।
ये जो प्रिंसिपल्स है वो क्यों दिए जाते हैं, ताकि जो नए लोग हैं उनको क्या मिल सके, कुछ गाइडलाइन मिले कि भाई कैसे काम करना है, कैसे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना है। दे वर्क एज गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए भी गाइडेंस मिलता है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी गाइडेंस देते हैं ये प्रिंसिपल्स। बट देयर प्रैक्टिकल सक्सेस डिपेंड्स ऑन इंटेलिजेंस एंड विजडम ऑफ मैनेजर्स एंड देयर टेक्निक। मैनेजर्स के अपने अपने फिर क्या होता है, टेक्निक, क्योंकि नॉलेज क्या होता है, साइंस। हमने पहले ही बोला कि जो मैनेजमेंट है वो प्योर साइंस नहीं है ना, वो फ्लेक्सिबल है उसके प्रिंसिपल्स। वैसे ही ये आर्ट है, लेकिन ये आर्ट क्यों है, क्योंकि वो अप्लाइड नॉलेज को क्या बोला जाता है, जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल में आप अप्लाई करते हो तो उसको टेक्नोलॉजी बोली जाती है, उसको टेक्निक भी बोला जाता है। तो ये जो टेक्निक है मैनेजर टू मैनेजर, मैंने पहले भी बोला कि अलग अलग होगा, तो दैट विल डिपेंड ऑन द इंटेलिजेंस एंड द विजडम ऑफ द मैनेजर। तुम्हारे पास एक रूल्स तो आए, एक प्रिंसिपल्स तो आए, लेकिन उसको कैसे तुम सक्सेसफुली अप्लाई करोगे, दैट विल डिपेंड ऑन द विजडम ऑफ द मैनेजर, हिज टेक्निक, जिसको कि हम क्या अगेन उस चीज़ को याद करते हैं, उसको बोला जाता है आर्ट। ओके, सो वी स्टॉप हियर।